Hello everyone. So this is Megha. Today in the part 11 of the chapter Molecular Basis of Inheritance, we will discuss about the regulation of gene expression. So this is the topic for today, the regulation of gene expression. Okay? So in the previous video, we have seen that how the transcription and translation process occurs. So we have seen that DNA. This is the double-stranded DNA, and the part which codes for mRNA, or we can say the part of the DNA which make RNA, that is considered as the gene. So this is what the gene present in the DNA. The whole DNA is not the gene. Only that part which is making the RNA and then further protein, that is considered as the gene. So this gene is going to form what? This is going to form RNA. This RNA is the mRNA, messenger RNA, and accordingly whatever the information is present over here on the mRNA, whatever the coding is there, accordingly this proteins are formed. Amino acid linked with the help of the peptide bond. ठीक है, अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जुड़ के एक चेन बना लेते हैं, एंड दैट चेन इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन. So this process, the formation of RNA, is considered as the transcription, and this process, the formation of proteins from the RNA, is called translation. Okay, so this you all know. Now you have seen here the gene. This is the gene. Suppose gene 1. This gene is expressed. Gene is expressed means that gene is forming the protein. Okay, means that gene has formed the protein. Now it means that gene is expressed. Okay, and how means we can say that the how is it regulated, when it is on or when it is off, that is what we call gene regulation. कब ये पर्टिकुलर जो प्रोटीन है वो बनेगी और कब नहीं बनेगी, उसका मतलब कि वो जीन रेगुलेशन हो गया है ना, जीन रेगुलेट हो रही है. जैसे कि हम बात करते हैं, सपोज इफ वी कंसिडर दैट सपोज दिस इज द पेंक्रियाज. ठीक है, ये एक हमारा पेंक्रियाज है, पेंक्रियाटिक ग्लैंड है, एंड दिस इज द लिवर. So in the cells of the pancreas, these are the cells of the pancreas and these are the cells of the liver. Okay, so we have the same DNA. हाँ, अब अपनी body की बात करें, so we have the same DNA in each and every cell in my whole body, है ना? So that DNA is present here. The same DNA is present in the cells of the liver. Now you know that pancreas have that gene which will make the insulin, है ना? इसके पास suppose ये gene है जो insulin बनाएगी. Now you know that the same gene is present on this DNA also. liver के पास भी वो है, but liver की जो cells हैं, they are not making insulin, they are not producing insulin. वो जीन liver में तो इंसुलिन नहीं बना रही है, पेंक्रियाज में बना रही है. यानी कि जीन का एक्सप्रेशन जो हो रहा है वो यहाँ पे पेंक्रियाज में हो रहा है, नॉट इन द लिवर, इजंट इट? सो ये जीन का रेगुलेशन हो रहा है, कब ये बननी है इंसुलिन, कब नहीं बननी है, और कहाँ बननी है, कहाँ नहीं बननी है, लिवर में नहीं बननी, यहाँ पे बननी है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल जीन रेगुलेशन. Okay, gene तो हमारी liver में भी है, वो same gene is present on your face, skin also, in heart also, but it is expressed in the pancreas only, and it is regulated over there. When insulin is produced in large amount, when in small amount, or when no insulin is required, that is all what we call gene regulation. So in eukaryotes, this gene regulation is occur at 4 levels. ठीक है, 4 जगह पे जीन का रेगुलेशन होता है. लेट अस सी वन बाय वन. फर्स्ट इज एट द ट्रांसक्रिप्शन लेवल. एट द ट्रांसक्रिप्शन लेवल. Okay, first step, that when the DNA, this gene is forming what?
RNA, ठीक है। ये जो RNA अभी बना है ये mRNA है, इसे अभी हम hnRNA बोलेंगे। इट इज नॉट प्रोसेस्ड, अब इसकी प्रोसेसिंग होगी। तो एक स्टेप तो ये होगी ट्रांसक्रिप्शन। सेकेंड स्टेप इज द processing of mRNA. We can also say there is splicing, ओके जिसमें से जो इंट्रॉन्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, एक्सॉन्स आर ऑफ यूज, इंट्रॉन्स आर ऑफ नो यूज, इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं। तो एक तो ये स्टेप हो गई, ठीक है। और हमने देखा था कि ये जो प्रोसेस है इट इज टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस। सो दिस processed mRNA or all RNA will come in the cytoplasm, ठीक है। सो दिस ट्रांसफर ऑफ RNA, थर्ड स्टेप इज दैट ट्रांसफर of RNA from nucleus to the cytoplasm. When RNA comes out, the fourth step is the translation, means the formation of protein. So at the translation level. So these are the four stages in eukaryotes where this gene is regulated. Okay, so gene regulation is in eukaryotes occurs at four stages. First is at the transcription level, second is at the processing of mRNA, third is the transfer of RNA from the nucleus to the cytoplasm, and fourth step is the translation. Now we are not going in detail about it. This is all about for you. Now in prokaryotes we will see that the gene regulation is controlled at the initiation of transcription. Okay? अगर यहाँ पे शुरुआत में ही ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो यानी कि आरएनए नहीं बने तो वो जीन का रेगुलेशन वहाँ पे हो जाता है, राइट। सो हियर इन प्रोकैरियोट्स देयर इज अ ऑपरेटर। अभी हम देखेंगे एक ऑपरेटर सीक्वेंस है जहाँ पे एक प्रोटीन आके बाइंड कर जाएगी। द प्रोटीन विल बाइंड एट द ऑपरेटर सीक्वेंस एंड दिस ऑपरेटर नाउ रेगुलेट वेदर दिस transcription process occurs or not occurs. So this is all depend on the operator, ठीक है। So let us see, देखो अब हम बात करेंगे ओपरॉन मॉडल की। बहुत सारे ओपरॉन होते हैं और ये जो प्रोसेस होता है ये प्रोकैरियोट में होता है। ओपरॉन कहाँ मिलेगा? वो प्रोकैरियोट्स में मिलेगा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल, सपोज दिस इज बैक्टीरिया सेल, ना यू नो इनका जो डीएनए है वो सर्कुलर डीएनए होता है, इजंट इट। अब इसका एक पार्ट हम ले लें तो इस पार्ट में क्या क्या है वो हम देखेंगे, उसको हम बोलेंगे ओपरॉन। तो एक ओपरॉन में क्या क्या मिलेगा वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोकैरियोट्स में जो है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ही अगर कंट्रोल कर लिया जाता है तो जो है जीन का रेगुलेशन हो जाता है। एंड हियर इन प्रोकैरियोट्स दिस जीन इज रेगुलेटेड और नॉट, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, okay, and also on the resources. अगर resources are present in the environment तो ये ओपरॉन जो है ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा, it depends on the resources which are present here in the environment or we can say in the medium. Okay, so there are many operon. We have to focus on the lac operon, मतलब lactose operon. Okay, there are tryptophan operon. Okay, then histidine operon. But here we have to focus only on this lac operon, ठीक है। तो अब हम एक डिस्कस करते हैं। पहले एक बैक्टीरिया लेते हैं इकोलाई, राइट। सो हमने एक पेट्रो डिश ली, वी हैव टेकन अ पेट्रो डिश, दिस इज पेट्रो डिश नंबर ए and another petri dish, this is petri dish number B. So on this petri dish there is a medium, ठीक है, मीडियम डाला हुआ है और इसमें बैक्टीरिया का कल्चर हो रहा है। दिस इज इकोलाई बैक्टीरिया, ओके, सपोज दिस इज इकोलाई बैक्टीरिया and in petri dish A there is a glucose in the medium, यहाँ पे ग्लूकोज है in the medium, whereas in petri dish B there is lactose in the medium.
ठीक है, अभी हमने देखा था कि जीन का रेगुलेशन इज आल्सो डिपेंड ऑन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, राइट, और वी कैन से द रिसोर्सेज प्रेजेंट। ओके, अब इसमें इकोलाई जो है, दिस इज द इकोलाई, glucose will directly enter in the cells of the E. coli and they will get the energy from the glucose। ठीक है, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस है लैक्टोज, अगर ग्लूकोज नहीं है, लैक्टोज है यहाँ पे, तो लैक्टोज क्या करेगा, इट कैन नॉट डायरेक्टली एंटर इन द सेल, ऐसे ही एंटर नहीं करेगा। पहले जीन रेगुलेशन होगा, जीन का रेगुलेशन होगा, पर्टिकुलर जो है प्रोटीन्स बनेंगी, फिर ये लैक्टोज की एंट्री होती है। ठीक है, तो वो हम बात करेंगे। देखिए 3 प्रोटीन है वो हेल्प करती है, एक तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, सेकेंड इज परमीज एंड थर्ड इज ट्रांस एसिटाइलेज। ओके, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, देखो गैलेक्टोज से आपको बीटा गैलेक्टोसाइडेज याद रहेगा, लैक्टोज आ रहा है इसमें भी, तो बीटा गैलेक्टोसाइड है, ये क्या करेगा, लैक्टोज को तोड़ देता है। लैक्टोज किस में टूटता है, सिंपल मोनोसैकेराइड क्या है लैक्टोज की, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, लैक्टोज में गैलेक्टोज, ओके रिमेंबर दिस, ग्लूकोज है और गैलेक्टोज है। तो इसको तोड़ने के लिए लैक्टोज को बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जरूरत है, परमीज एंट्री के लिए जरूरत है। लैक्टोज एंटर तभी करेगा जब जो वॉल है उसकी वो परमिएबल हो, तो परमिएबल बनाने के लिए परमीज प्रोटीन होनी जरूरी है। तो ये प्रोटीन्स तभी बनेंगी जब एनवायरनमेंट में क्या है, लैक्टोज इज प्रेजेंट, इजंट इट, तो दिस वी विल सी। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो हमने देखा कि डीएनए जो होता है प्रोकैरियोट का सर्कुलर होता है, वी विल टेक द स्मॉल पार्ट ऑफ इट। ठीक है, हमने इसका एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। अब आप एक चीज देखेंगे, यहाँ पे जो जीन है जेड वाई ए, ठीक है, 3 जीन है जेड वाई एंड ए, these 3 genes are there and एक ही प्रोमोटर है जो इन तीनों जीन्स को कंट्रोल कर रहा है। देयर इज अ सिंगल प्रोमोटर फॉर ऑल दीज 3 जीन, इन तीनों जीन्स को कंट्रोल करने के लिए एक ही प्रोमोटर होता है। आप यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में हर एक जीन के लिए अलग अलग प्रमोटर है, बट प्रोकैरियोट्स में क्या देखोगे कि बहुत सारी जीन्स हैं और 1 2 3 जीन्स हैं यहाँ पे और एक ही प्रमोटर है, और ऐसी जीन्स को हम बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक जीन्स। ओके, सो दिस यू विल फाउंड इन प्रोकैरियोट्स ओनली। देन प्रोमोटर के बिल्कुल पास में आपको मिलेगा ऑपरेटर, यहाँ पे आपको मिलेगा ऑपरेटर। Then here you will found another gene, यहाँ पास में एक और जीन मिलेगी आई जीन, इस जीन को बोलते हैं इनहिबिटर, दिस इज इनहिबिटर जीन, ऑल्सो कॉल्ड रिप्रेसर जीन। अब इस जीन का भी ऑपरेटर है ना, इस जीन का भी अपना ऑपरेटर है, ये इसका ऑपरेटर है, सॉरी प्रोमोटर नॉट ऑपरेटर, दिस इज द प्रोमोटर फॉर दिस जीन, isn't it? अब हम बात करते हैं पहला केस, इन एब्सेंस ऑफ दिस लैक्टोज, अगर इस सेल के आसपास लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, ओके, तो ये एक सेल है बैक्टीरिया की, इसके आसपास लैक्टोज नहीं है, तो अच्छा देखिए यही एक ओप्रोन है। ओप्रोन क्या होता है, ओप्रोन के पास क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं, ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। An operon is having the structural gene with the promoter and the regulator gene. This inhibitor gene is the regulator gene because it is going to regulate the process. So this is what the operon, which is having the structural gene, promoter and the inhibitor. So आप कैसे याद रखेंगे, पिप्पो से याद रखेंगे, पहले क्या आएगा promoter, this is the promoter, I से inhibitor gene, P से plate promoter और O से operator।
Now the situation is in the absence of lactose, when the lactose is not there. So what will happen? The RNA polymerase will come, and bind here with the promoter. ठीक है, ये RNA polymerase से bind करेगी. Now when RNA polymerase bind, it will move further and from here and इससे क्या बनेगा? RNA बनेगा. ठीक है, RNA बन गया और RNA से क्या बनेगी? एक प्रोटीन बनेगी and this protein is the repressor. ये एक repressor है. Repressor protein है. Okay, this is the repressor protein. Okay, so this repressor protein will bind with this operator. ये यहाँ चली जाएगी और यहाँ पे ऑपरेटर से बाइंड कर दी. अब ये जब ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगी तो यहाँ पे प्रोमोटर पे जब आरएनए पॉलीमरेज आएगा, आरएनए पॉलीमरेज प्रोटीन आएगी, तो ये जो है आगे नहीं जा पाएगी और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा. नो ट्रांसक्रिप्शन है ना. नो ट्रांसक्रिप्शन तो फिर नो ट्रांसलेशन, प्रोटीन भी नहीं बनेंगे. तो ये तो हो गई इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज. व्हेन द लैक्टोज इज नॉट प्रेजेंट इन द मीडियम, सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन. ये जो ओप्रोन है ये रहेगा ऑफ सिचुएशन में. ओप्रोन इज ऑफ, यानी कि ये बंद है. नॉर्मली ये बंद होता है. एक्टिवेट कब होगा? जब एनवायरमेंट में लैक्टोज होगा. ये वाली सिचुएशन क्लियर है. सो दिस इज द ओप्रोन विच इज हैविंग स्ट्रक्चरल जीन. देखिए Z Y ये 3 जीन है. Z is going to make beta galactosidase, Y is going to make permease and A is going to make transacetylase. ये 3 प्रोटीन बनेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन नहीं बन रही है क्योंकि जरूरत भी नहीं है. तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये बन जाएगी. कहाँ से? रेगुलेटर जो जीन है, और वी कैन से इनहिबिटर जीन है, रोक रही है ना, तो इनहिबिटर भी बोल सकते हैं या रिप्रेसर भी बोल सकते हो. और इस प्रोसेस को रेगुलेट कर रही है तो रेगुलेटर भी कह सकते हैं. तो जो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज रीड करेगा, क्या बन जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज क्या बना देगी? एक आरएनए बन जाएगा. आरएनए से क्या बन जाएगा? फर्दर प्रोटीन बन जाएगा. दिस इज द रिप्रेसर प्रोटीन. दिस रिप्रेसर प्रोटीन गो एंड बाइंड विद द ऑपरेटर. ऑपरेटर सीक्वेंस है यहाँ पे, वहां से बाइंड कर जाएगी. अब क्या होगा? यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज है, इट विल नॉट मूव फर्दर एंड कैन नॉट डू द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, है ना. ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ये नहीं कर पाएगी, आगे नहीं जा पाएगी क्योंकि यहाँ पे बाइंड हो गया है. Isn't it? ये वाली बात समझ में आई. यहाँ पे बाइंड हो गया है क्या? रिप्रेसर. तो इट विल नॉट मूव फर्दर. नहीं मूव करेगी तो ये जो पर्टिकुलर जीन है इससे कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा. अब दूसरा केस लेते हैं. इन द सेकेंड केस वी विल सी. So this is the ओप्रोन. ये ओप्रोन है. अब इस ये जो सिचुएशन है इसमें हम बात करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज. अब बात करते हैं कि लैक्टोज है. ठीक है, इस सेल के आसपास लैक्टोज है. जब लैक्टोज है पहले तो बात करते हैं तीनों जीन्स की, Z, Y और A. इसके आसपास क्या था? एक था प्रोमोटर, PIPO से हमने याद किया है, ये भी प्रोमोटर है. PIPO. I से क्या हो गया आपका? इनहिबिटर जीन. और O से हो गया आपका ऑपरेटर. Isn't it? This is what the ओप्रोन we call. ये ओप्रोन है. अब क्या होगा इसमें? देखिए आरएनए पॉलीमरेज आया. आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव किया, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हुआ, आरएनए बना. आरएनए से फिर आपके बन गया प्रोटीन, वही वाली प्रोटीन. दिस प्रोटीन इज द रिप्रेसर प्रोटीन. ठीक है. अब ये सपोज ये सेल पूरी बना लेते हैं, बैक्टीरियल सेल है. अब देखो ये लैक्टोज प्रेजेंट है.
तो लैक्टोज ना थोड़ा बहुत एंटर कर जाता है, लैक्टोज विल एंटर लिटिल बिट, क्योंकि सम हॉट जीन का एक्सप्रेशन थोड़ा बहुत होता रहता है तो परमेज बनता रहता है, थोड़ा बहुत परमेज होता है तो थोड़ी बहुत एंट्री लैक्टोज की हो जाती है। अब ये लैक्टोज एक्ट एज अ इंड्यूसर, लैक्टोज इज अ इंड्यूसर हियर, क्योंकि ये प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा, इंड्यूस कर देगा। नाउ दिस लैक्टोज विल गो एंड बाइंड विद दिस रिप्रेसर प्रोटीन, ये लैक्टोज है, this lactose will bind with the repressor protein. Now this repressor protein will not be able to bind with the operator. जैसे पहले आपने देखा था कि ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड कर रही थी, लेकिन यहाँ पे लैक्टोज की एंट्री से, लैक्टोज क्या है, इंड्यूसर है, और इस प्रोटीन को ये इनएक्टिव कर देगा, इससे बाइंड करता है, बाइंड कर जाएगी, ये प्रोटीन हो गई इनएक्टिव, रिप्रेसर प्रोटीन इज इनएक्टिव नाउ। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज आएगी वो फर्दर मूव करेगी, आगे मूव करती जाएगी और क्या बन जाएगा, ये आरएनए बनेगा। ठीक है, अब ये जो आरएनए बना है इस आरएनए से 3 प्रोटीन बनेंगे। ठीक है, सपोज ये वाला जो पार्ट है ये जेड वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज वाई पार्ट, और जो एंड वाला पार्ट है वो ए पार्ट है, ये वाला पार्ट है ए पार्ट है, ये ए पार्ट है, ये वाई पार्ट है। ठीक है, तो जेड वाले पार्ट से बनेगी प्रोटीन जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इससे जो बनेगी वो है परमीज, वाई से बनेगी परमीज, और लास्ट वाली से बनेगी ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये 3 प्रोटीन बन गई। ठीक है, परमीज जैसे ही बनेगी बहुत सारा लैक्टोज अंदर आ जाएगा, बहुत सारा लैक्टोज अंदर आ जाएगा। लैक्टोज अंदर आने की वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेज इस लैक्टोज को तोड़ देगी ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में, और इस तरीके से ये क्या होगा, एनर्जी ले लेगा बैक्टीरिया, है ना, इस तरीके से ये बैक्टीरिया एनर्जी ले लेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो परमीज की हेल्प से ये जो है वॉल इसकी परमेबल हो गई, लैक्टोज विल एंटर, ना बीटा गैलेक्टोसाइड इसको ब्रेक डाउन करेगी मोनोसैकेराइड यूनिट्स में, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। इन दिस वे दिस bacteria will take the energy now. So you have seen the gene is regulated when this lactose is present in the substrate or in the environment. Okay, so you can see जब environment में वो चीज है, जब प्रेजेंट है तभी इस जीन का रेगुलेशन हो रहा है, अदरवाइज जीन जो है रेगुलेट नहीं हो रही है, बंद रहती है, ऑफ रहती है। ओके, सो दिस इज हाउ द जीन इज रेगुलेटेड इन दी दिस प्रोकैरियोट्स, राइट। तो ये तो हमने लैक ओपरोन देखा है, और भी ओपरोन होते हैं। लैक ओपरोन जनरली ऑफ रहता है, भी हमने देखा एनवायरमेंट में, जब लैक्टोज नहीं तो वो ऑफ रहता है, जैसे लैक्टोज आ जाएगा वो ऑन हो जाएगा और ये जो है प्रोटीन्स बन जाएंगी। ऐसे और भी ओपरोन होते हैं, ट्रिप्टोफैन ओपरोन होता है, वो हमेशा ऑन रहता है, लेकिन एक पर्टिकुलर सिचुएशन आती है तब वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो वो हमें डिस्कस नहीं करना, वी हैव टू फोकस ऑन दिस लैक ओपरोन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, राइट। And let's meet in the next video. Till then, bye bye, and please subscribe my channel and hit the bell icon to get the updates.